Hello and welcome to JK Rakhan. So friends, in this video we are present here with an update which is coming from Indian Coast Guard related to the recruitment of assistant commandant in Indian Coast Guard for batch 2025. So friends, this is a very good opportunity for all those candidates who want to serve in Indian Coast Guard as an assistant commandant. And friends, the eligibility criteria is very simple. If you have completed your graduation in any discipline or if you are an engineering candidate, so friends, you are eligible to apply under this recruitment. In this video, we shall discuss all the important information related to the recruitment of assistant commandant in Indian Coast Guard, all the stages in the selection process as well as the eligibility criteria of age and education. So friends, all the eligible candidates need to understand the information that we are going to discuss in this video within upcoming 4 to 5 minutes. So friends, first of all, you can see here, for the officer entry in Indian Coast Guard as an assistant commandant, the official notification has been declared on Indian Coast Guard and the online registration has also been initiated on this official website of Coast Guard. So as you can see here, the official notification is available. You just need to click on this link which is available here. And after that, friends, you need to click on this upcoming opportunities. And you can see here recruitment advertisement for officers 2025 batch. The notification is also available here. You just need to click on this link and you can see here the registration link is also activated. So friends, now we are moving towards the official notification of this recruitment. So friends, as you can see here, this is an official notification of Indian Coast Guard of assistant commandant. So you can see here for general duty and technical branch for 2025 batch. So you can see here online registration has been started from today onwards and it will be available till 6th of March 2024 at 5:30 p.m. And further, friends, you can see here under this official notification, you will be posted as an assistant commandant in Group A Gusted Officer under Government of India. And further, friends, you can see here the eligibility criteria, age as well as the educational qualification. So we will discuss all these details one by one. And now I am going to discuss in a bilingual way, that is both in English and Hindi, so that you people can understand all this information in a very understandable way. So friends, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी इसके रिक्रूटमेंट के अंडर दो ब्रांचेज रहेंगी। आपकी रहेगी जनरल ड्यूटी और सेकंड आपका रहेगा टेक्निकल। टेक्निकल में आपकी दो इंजीनियरिंग ब्रांचेस मेजर रहेंगी, एक आपका मैकेनिकल और सेकंड आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों सेकंड वाले के अंडर रहेंगी। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करना चाहिए। और जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, उनकी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए उनको मिलेगी। और जो कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगी अपर एज में। और फ्रेंड्स, जेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों के लिए मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे जनरल ड्यूटी और टेक्निकल के लिए। जीडी के लिए आपकी सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने कर रखी है और एग्रीगेट आपके पास 60% है ओवरऑल डिग्री में फॉर जनरल कैंडिडेट्स, सो यू आर एलिजिबल अंडर द जनरल ड्यूटी ब्रांच। ऑल्दो यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स सब्जेक्ट इन योर क्लास 12th लेवल। और आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में दोनों को कंबाइन करके एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% या फिर इससे अबव होने चाहिए, चाहे आप SC ST या फिर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है, ये आपका मैंडेटरी रहेगा। सिमिलरली अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो आपका ओवरऑल डिप्लोमा में एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स बनने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका ये जो डिग्री वाला क्राइटेरिया जिसमें आपका 60% एग्रीगेट मांगा है जीडी और टेक्निकल दोनों में, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल में आपका इंजीनियरिंग डिग्री का रहेगा।
तो इसमें आपके 5% रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स को रहेगी, लेकिन ये जो सेकंड वाला क्राइटेरिया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला, इसमें आपकी एग्रीगेट मैथ और फिजिक्स के मार्क्स 50% होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एज का और आपका एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो टेक्निकल के लिए भी सेम रहेगा, सिर्फ इसमें आपका डिफरेंस ये रहेगा, ये सारी ब्रांचेस जो यहाँ पे दे रखी हैं इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, नावल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स और सिमिलरली इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन। तो अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग इन ब्रांचेस में कर रखी है, यू आर गुड टू go for this technical, mechanical. Similarly for electrical and electronics, you can read in between the line, same eligibility criteria for the age as well as for the education. तो फ्रेंड्स सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी 55% SC/ST के लिए होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए डिग्री के लिए, और सिमिलरली अनरिजर्व या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए आपकी 60% क्राइटेरिया होना चाहिए आपका डिग्री का। अपर एज रिलैक्सेशन जो SC/ST कैंडिडेट्स को रहेगी वो 5 ईयर्स की रहेगी, OBC को 3 साल के लिए। रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% दी जाएगी SC/ST को सिर्फ और सिर्फ डिग्री में। फ्रेंड्स दिस शैल बी योर क्राइटेरिया फॉर एज एंड एजुकेशन। फर्दर यू कैन सी हियर द वैकेंसीज under this recruitment of assistant commandant 2025 batch. So you can see here the vacancies shall be distributed among various reserved categories. So you can see here under SC, ST, OBC, EWS and last is unreserved. So you can see here total 70 vacancies shall be there in this recruitment, and all these vacancies shall be distributed among all these reserved categories. Further friends, you can also see here all those candidates who are in the final year of their degree, they are also eligible to apply. लेकिन उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है डिग्री का वो 30 नवंबर 2024 तक या फिर उससे पहले निकल जाना चाहिए। फर्दर फ्रेंड्स यू कैन सी हियर अंडर योर सिलेक्शन प्रोसेस। सो इस सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल आपकी 5 स्टेजेस रहेंगी, आपके रिटन एग्जाम से लेके आपका लास्ट इंडक्शन जब आपकी रहेगी। आपका एग्ज़ाम से लेके आपके इंडक्शन तक जो आपकी टेंटेटिव डेट्स रहेंगी वो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इस नोटिफिकेशन में, ताकि आपको एक आइडिया रहे। सो फ्रेंड्स वंस यू विल सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर दिस रिक्रूटमेंट, यू शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 1 एंड अंडर दिस स्टेज 1 you need to appear in the online screening test which is known as CGCAT। और इस एग्ज़ाम जो कि आपका स्टेज 1 में रहेगा, इसमें आपके टोटल 100 MCQs रहेंगे और ये दोनों टेक्निकल और GD के लिए सेम रहेंगे। इस एग्ज़ाम में आपके जो 100 MCQs रहेंगे, हर MCQ आपका 4 नंबर का रहेगा और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि आपकी 1 मार्क रहेगी, यानी कि 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके फर्स्ट स्टेज जो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कंबाइंड CGCAT रहेगा, इसमें आपके टोटल आपकी 4 सेक्शंस रहेंगी, इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और आपका D रहेगा जनरल नॉलेज। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा और 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फर्दर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई स्टेज 1 शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन भी रहेगी, यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और फर्दर आपको सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी कंडक्ट होती है स्टेज 1 में। वंस यू विल क्वालिफाई योर स्टेज 1 यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2 एंड योर स्टेज 2 इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड आपकी दूसरी स्टेज रहेगी, तीसरी स्टेज आपकी रहेगी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो बेसिकली स्टेज 2 और स्टेज 3 आपकी सेम रहती हैं, जैसे आपका SSB रहता है इंडियन आर्म फोर्सेस में। इंडियन आर्म फोर्सेस में आपका जो SSB रहता है 5 दिन का आपका वो रहता है, पहले दिन आपकी स्टेज 1 होती है और रिमेनिंग 4 दिन आपका स्टेज 2 होती है। सिमिलरली इसमें भी आपका जो स्टेज 1 है जिसको हम PPTT कहते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने स्टेज 2 में रखी है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। सेम यहाँ पे रहता है आपका जो आपकी स्टेज 1 SSB की रहती है। तो स्टेज 2 में बेसिकली आपका एक कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट रहेगा, जैसे आपका OIR रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो आपका सैम्पल पेपर यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा बेसिकली वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा और आपको OMR शीट दी जाएगी भरने के लिए। फॉलोड बाय कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, योर PP and DT
टेस्ट शैल बी कंडक्टेड देयर। और आपका ये जो कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट रहेगा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, और पीपीडीटी में भी आपको स्पीक करना और डिस्कस करना है इंग्लिश में ही। सो यू नीड टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। एंड फर्दर वंस यू विल qualified the CCBT, then only you will be shortlisted for the PPDT। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बैटरी टेस्ट में रह जाते हैं तो उनका फिर PPDT में शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, तो उनको फिर CCBT के बाद ही उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आपको दोनों ये टेस्ट CCBT और PPNDT को क्वालिफाई करना है। वंस यू विल क्वालिफाई बोथ दिस टेस्ट you will get shortlisted for the stage 3 and your stage 3 is फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। और ये आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो है इसमें आपके बेसिकली साइकोलॉजिकल GTO टेस्ट और इंटरव्यू रहता है, और लास्ट दिन आपका कॉन्फ्रेंस रहता है। जब आपका स्टेज 3 भी क्वालिफाई हो जाती है उसके बाद आपको स्टेज 4 जो कि आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फर्दर आपकी स्टेज 5 रहेगी जो कि आपकी इंडक्शन रहेगी, और 31 दिसंबर 2024 तक आपकी इंडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब जो आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं कि आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और आपका स्टेज 4 एंड 5 कब तक कंडक्ट होंगी वो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर फ्रेंड्स वन थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन, once you will get shortlisted for the stage 3, so after stage 2 you need to show all your original documents. So when you will get shortlisted for the stage 2 you need to keep all these documents along with you when you will report at your respective PSB board. तो ये आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, so you need to keep this thing in your mind. फर्दर व्हाट शैल बी द एग्जामिनेशन फीस। सो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी 300 रुपीज़ रहेगी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू OBC एंड EWS एंड अनरिजर्व्ड। सो SC ST वालों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहेगी। ट्रैवल एक्सपेंसेस यू कैन सी हियर फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। स्टेज 1 के लिए भी उनको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, और स्टेज 2 के लिए सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस, लेकिन वो सभी कैंडिडेट्स वो होने चाहिए जो पहली बार अपना FSB अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन SC ST के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर ऑफ अपीयरेंसेस उनको यहाँ पे स्टेज 2 और स्टेज 1 दोनों में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। फर्दर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी टेंटेटिव मंथ रहेगा जिसमें आपकी डिफरेंट स्टेजेस कंडक्ट होंगी। तो टेंटेटिवली आपकी जो स्टेज 1 है यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल 2024 में कंडक्ट होगा, और सिमिलरली आप बाकी स्टेजेस का भी देख सकते हैं। और लास्ट में आपकी जो इंडक्शन है वो आपकी स्टेज 5 यानी कि दिसंबर एंडिंग में रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर से पहले आपकी जो इंडक्शन है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगी। सो फर्दर फ्रेंड्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस information that we have discussed in this video. In case if you have any doubt you can put your query in the comment section. We shall definitely get back to you within a possible time. And one more thing friends, if you are eligible and if you have understand all this information that we have discussed here, go to the Indian Coast Guard official website, register under this recruitment of 2025, and after that you need to fill all the important information in the online application form, and after that you need to submit accordingly. If you will face any problem you can ask in the comment section. Thank you friends, have a great day ahead.